मोटापे वाले ज़्यादा है, और से ले लिए क्या मेरे से लेगा, मेरा जो संतुलन है ना शरीर का वो ठीक नहीं है, मालूम क्या कह दूँगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। I have got personal experience about violation of human rights. Although the government is saying that the courts will give priority and hasten the disposal of the cases pertaining to senior citizens, but it is only in theory. I have filed many cases in Patiala House Court and High Court. However, they give long dates of several months, up to 6 months. When I request them that a early date should be given for early disposal of the case, they don't care about it. So that is a great sad story. Now another thing I want to say, that senior citizens have got great danger to their life from their own kith and kin. When the citizens become old, the properties which they had possessed, the property price has gone up very high. And the children and near relatives are keeping an eye that the earlier the old man passes off, the earlier they will get the benefit of all their property. Now I got my own personal experience of my grandson, that is my sister's grandson. He is at Muzaffarnagar and he is staying in the house of his father, which belongs to him. I suggest, and he does not give any monetary help except rupees 100 per day, that is 3,000 per month, to sustain himself. That is a very meager sum these days that a person can sustain himself. He is staying in a house, portion of his house, which carries a rent of 10,000 rupees. He does not allow his father to have the reverse mortgage facility. He says that if you do that, I will break your legs. He decided to sell that property. He does not want to sell that property, although his father, that is my sister's son, has got full right of that property. He does not behave. Now I showed him the government has enacted Maintenance and Welfare of Parents, Citizens Act 2007. When you read it, it is very nice that up to that the case will be decided in 3 months. But those who have filed cases, again, they have taken more than a year to decide the case. So the cases are not being decided and the children are not looking after, so they are in great trouble. Now, in order to stop it, police has got beat constables who are supposed to visit senior citizens often. But again, the beat constable does not visit the senior citizens. Although, because of the nuclear families, even the neighbors, other people don't visit the senior citizens, and solitude has become a great problem for them. They remain alone. If the beat constable, that is the policeman, visits them, say once a week or once a month, so they can express their problems to him. But there is nobody to hear. Nobody goes. Beat constable, I have not seen him visiting my own house, although I stay alone with my wife. He never comes. मैं चलती हूँ थोड़ा थोड़ा, बहुत तेज नहीं चल सकती। परेशानी क्या, मेरी बोन्स वीक थी, उस वजह से थोड़ी वीकनेस है। दवाई देती हूँ ठीक, मैं लाइट खाती हूँ और मिर्ची कम, तेल कम। बीमारी है थोड़ी सांस की, उससे मैं दवाई लेती हूँ। मैं 1993 में रिटायर हुआ था, अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से। बहुत अच्छी हेल्थ थी मेरी, 2003 तक मैं बिल्कुल ठीक चला। उसके बाद पार्किंसन हुआ मेरे को, पिछले 10-11 साल से पार्किंसन चल रहा है।
लेकिन फिर भी मैं डिटर्मिनेशन के साथ बेड चिपका नहीं रहता, मैं निकलने की कोशिश करता हूँ बाहर। अभी मेरे को हालत ख़राब हो रही थी घर में, मैं बाहर निकल आया, मैंने कहा देखेंगे क्या होता है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी मैं निकलता हूँ बाहर। पिछले 11 साल से मैं तकलीफ में हूँ। मुझे यही कहा जाता है कि आप अपनी डिटर्मिनेशन से लड़ रहे हैं, तो आपकी जगह कोई और होता तो बिल्कुल हिलता भी नहीं है। 20 साल से मेरे को मुश्किल है गोड्डे और कमर की, तब तक ठीक नहीं हुई, बड़ा इलाज कर चुकी हूँ, बस यही परेशानी है। ये क्यों क्या करेगा इसमें। शुगर बीपी तो सब दुनिया के साथ है। खाने पीने को परहेज करते हैं, तला नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते। कौन सीनियर सिटीजन कौन पूछता है, कोई पूछता है नहीं, कोई देयर इज़ नो स्कोप, देयर इज़ नो प्लेस फॉर दैट। वो तो ठीक है, आप अपनी स्टैंडिंग है, आपकी अपनी हिम्मत है तो चलते रहो, नहीं तो आपको आपको तो कोई वो गवर्नमेंट की तरफ से या पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा वो तो नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि भाई सीनियर सिटीजन की थोड़ी बहुत इज्जत हो, जो जितना मतलब जगह चाहिए जो सांस लेने की वो तो मिलनी चाहिए कम से कम। हर जगह हर टाइम पर जब भी आप कहीं जाएं तो आप ये देखते हैं, बैंक में जाए, बैंक में आपको सीनियर सिटीजन के लिए कोई जगह नहीं आई, और टू गेट इनटू द लाइन। बट द बोर्ड इज देयर सीनियर सिटीजन का, बट नो सर्विस अवेलेबल देयर। तो इस तरह से कोई मतलब मेडिकल के लिए कोई सीनियर सिटीजन के लिए खास फैसिलिटी नहीं है। तो आपका ठीक है, आपके पास आपके रिसोर्सेज है तो आप चल सकते हैं, नहीं तो आम आदमी के लिए तो बड़ी दिक्कत है। सीनियर सिटीजन के लिए खास, मैं आज हॉस्पिटल का चक्कर लगाया, मैंने आज देखा बेचारे बुजुर्ग लोग काफ़ी परेशान हैं, सुनता नहीं कोई उनको लाइन में बैठे हैं, जब बारी आएगी देखेंगे, तब तक शायद उनके प्राणी निकल जाए वहाँ पर। ये सब चीज़ें हैं तो लोगों को देखते हैं, लोगों के साथ होता हुआ देखते हैं तो वो फील होता ही है। अब आप या पार्क में ही चले जाइए, कोई यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है। अब ये लोग बैठे हैं, यंग लोग हैं, यदि कोई सीरियस आएगा तब इसको जगह नहीं है, अपनी वो हल्ला गुल्ला करते रहेंगे, उनके लिए कंसिडरेशन नहीं। मतलब जस्ट इन एवरी aspect of life you find thing is missing। थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर ऐसा होना चाहिए। कभी ना बस से चढ़ी हूँ ना मेट्रो से देखी है नहीं, मेरी आंखें थोड़ी सी खराब है, रेटिना फट गया उनकी। अच्छा, बहुत साल हो गए और 5-6 दिन पहले और फट गया। कल डॉक्टर को गए, उसने दवाई दे दी, भाई इलाज तो है नहीं, ठीक हो नहीं सकता, जैसे दिन की है ऐसे करती। और बीमारियाँ तो बेटा भाई बुढ़ापे में तो हज़ारों होती हैं, ब्लड प्रेशर भी है, थोड़ा बहुत शुगर भी है, हार्ट की भी है, थोड़ी थोड़ी सब कुछ लगी रहती है। दवाई खाते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, अपनी बस बैठते नहीं हैं आराम से। बैठ जाओ तो फिर बैठ जाओ, बिल्कुल इसे अपने आप चलते ही रहते हैं जितना हो सकता है, जितना नहीं होता फिर बैठ जाते। इन इंडिया वी नीड सोशल सिक्योरिटी, एस्पेक्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी which is absolutely missing, and this aspect, if it is introduced, can broaden the outlook of India and can give much progress, because we can introduce social security. It is one of the aspect, social security. Had there been this thing, aspect of social security, somebody should have gone, search them what they need. Nobody cares. In fact, our government biggest failure is in this direction. Government can look after them. As it is, government doesn't look after them. So, what can be the plight? And most sufferer in a bad way, in a wrong way, is elderly people. Elderly people means their capacity of work is gone, they can't work, and they need financial help. If government comes to their aid, naturally they will be happy, or rather, because they
elderly people are the source of reservoir of information. They have the knowledge, they have the power to guide. But a hungry belly can't do anything. You can't impose morality on a hungry belly. If you look after them, feed them properly, they can give so many schemes, as I am speaking for you. This 78 years of mine, I have collected so many things, so many experiences, varied experiences, which a young man, say about 40, 50 will not have. Age will teach him, he will educate him, he will make him learned man, so that he can guide, he can formulate policies, can do so many things for India. Secondly, this social security, one aspect. Second aspect is citizens should also look after them. It's a matter of loneliness. People feel lonely. In Western countries, what is this thing? They marry number of times. A man becomes wifeless. Wife is no more there. But he can marry. This system is absolutely not there in India. Our caste, our religion, our this thing, what do you say? It stops. You should not marry, or our different caste. You should not marry this caste. Arey, what is this? This is all fun. If we are lonely, we should remove the loneliness. The biggest enemy, the biggest disasters with a man or a woman can be loneliness. If we have the habits, we have the hobbies, reading books, listening music, moving around, giving these lectures, making people wiser by educating them, loneliness will go. So loneliness means one of the aspects is marriage. Here customs, culture and taboos, there are so many taboos. You should not marry in this caste, in this religion. People marrying in Western countries even at the age of 90. What do you need in old age? You need a company, you need a guidance, you need help, you need some assistance. And assistance comes when you have a partner. You can, there are all sorts of assistance. Say what you will have, you will eat good food, you will develop good habits, talking and means of passing this thing. You can play cards, you can run music, you can do gossiping, not gossiping idle thing, but constructive thing. So that wise, loneliness should be removed. मेरे अपने घर में मेरा एक ही बेटा है, लेकिन वो हमें दोनों को हाई एंड ड्राई छोड़ के जा चुका है। जो कुछ भी था वो बेटी की शादी में लग गया या बेटा ले गया, तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एकदम से। जो हमारा अपना बिल्डर है जिसको हमने घर दिया, उसने मेरे बेटे को बहुत लोन से वो सब हमने घर भी छोड़ चुका है कि स्टिल वो हमें छोड़ के चला गया। लेकिन जो अब बिकॉज हम भी बहुत हर अलोन एंड बहुत स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में है। जब हम तो अब इस बात में आ गए कि जब आपको अपना बच्चा मैंने अपने पेट में रखा 9 महीने तो जन्म दिया, माई ब्लड एंड फ्लैश इज़ नॉट विद मी, तो मैं दूसरों पर क्यों भरोसा करूँ। मैं बिल्डर को कुछ नहीं कह सकती बिकॉज मैं 10 बार सोचती हूँ कि मेरा बेटा ही मेरे साथ धोखा कर दिया, तो मैं उसको क्या बोलूँ। उसको भी कर सकता था, उसने भी किया, उससे भी फ़ायदा उठाया, उसे भी सब खराब के पता। ओल्ड एज में तो आपका कम से कम 7-8,000 का तो मेडिसिन का ही खर्चा है। जैसे मैं डायबिटिक भी हूँ, CPAP मशीन मुझे ब्रीदिंग मशीन रात को डायबिटिक के साथ आपको थायराइड भी है। मेरे हस्बैंड की नीज में बड़ी प्रॉब्लम है। मेडिसिन तो हम लाइक डेजर्ट खाते हैं, खाने के बाद जैसे डेजर्ट खाते हैं तो हम मेडिसिन खाते हैं।
लेकिन कोई हमारा सुनने को तैयार ही नहीं। जो सिस्टम प्रणाली है, जो सिस्टम है, जो वही सिस्टम ठीक नहीं है। अब जब हमारा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम है, अपना सोसाइटी सिस्टम है, उसमें हम प्रॉपर्ली एजुकेट नहीं है, उसमें दिक्कत तो आनी है। और दिक्कत आने के लिए न्यू जनरेशन्स को इसको लीड लेना चाहिए कि भाई न्यू जनरेशन्स को किस तरीके से हम पुरानी वैल्यूज़ को कायम रखें। और वो कायम रखने के लिए हम लोग तो ओल्ड हैं, अब जाने वाले हैं, सारे संसार से चले जाएंगे। और जो जनरेशन गैप है और जो हमारी जो तरीका है समझने का सोसाइटी का, वो नई जनरेशन को समझना चाहिए और उसके लिए एक्टिवली उनको आगे आना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जनरेशन्स को पहले हम एजुकेट करना चाहिए, न्यू जनरेशन्स को, ताकि वो ओल्ड आदमियों की वैल्यूज़, हमारी अपनी वैल्यूज़, जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, वो समझने की कोशिश करें। अभी सबसे बड़ा तो वायलेशन कोर्ट में ही है। कोर्ट में आपको कभी जगह नहीं मिलेगी, कोर्ट में आप खड़े रहने की जगह मिलेगी। ओल्डर पर्सनस की जो है, जैसे वो सोचते हैं कि भाई उनको हम प्रीफरेंस दें, उनको लिए कुछ हम आगे करें, वो कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं होता मामला। इसलिए दिक्कतें तो ओल्ड आदमियों की हैं, ओल्ड जनरेशन की भी आदमी दिक्कत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बसेस में सीट है या ट्रेन में सीट है, वहाँ लोग बैठे रहते हैं। किसी जब तक सेल्फ कॉन्शियस आदमी नहीं होगा, यंग सोसाइटी, तब तक कि हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और जागरूक रूप से नहीं आ पाएंगे। हमें न्यू जनरेशन्स को जागरूक रूप से आनी चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोलूँगा कि आज के ज़माने में, इस समय, जो ओल्डर या सीनियर सिटीज़न को रिस्पेक्ट या ऑनर जो मिलना चाहिए ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप। आज ये जो जनरेशन गैप है, एक तो वो चीज़ ध्यान में लोग रख नहीं रहे हैं, और जो एल्डरली पीपल हैं, सीनियर सिटीज़न के, उनको ह्यूमन राइट्स में पूरी राइट्स नहीं मिल रही है। जैसे कि उनको रिस्पेक्ट मिलना, या घर में खाना प्रॉपर किसी को नहीं मिलता है, किसी को हेल्थ की केयर प्रॉपरली नहीं मिल रही है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो एल्डरली पीपल को, सीनियर सिटीज़न को मिलनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल रही हैं। हर एक के साथ नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, कई घरों में ये चीज़ हमने स्टडी करी है। दूसरा ये है कि जो सीनियर सिटीज़न इस समय इंडिया में आइसोलेशन फील कर रहे हैं, वो इस वजह से कि पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी, वो आजकल जॉइंट फैमिली इंडिया में कम हो रही है। रीज़न ये है कि जो न्यू जनरेशन है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और कई जो यंग जनरेशन है, वो एल्डरली पीपल को एक तरह से बोझ समझते हैं। इसकी वजह से ये जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम जो पहले इंडिया में था, वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी परसेंटेज तक ये बड़े बड़े शहरों में ख़त्म हो गया। सिस्टम अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना होगा, जो कि न्यू जनरेशन को समझना होगा इस सिस्टम